something you need to do prior to starting the passage. Now basically इस तरीके से आपने करना है. रीडिंग पैसेज 3 डेफिनेटली ट्रिकी होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है और हर एक चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से हर एक वर्ड समझने की कोशिश मत करना, कॉन्टेक्स्ट बस समझो. ओवरऑल से अगर हेडिंग्स नहीं है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है तो हेलो एवरीवन. My name is Sonam Sandhu, and in this video, I am going to focus on Cambridge Book 14 Test 3. So, I received this comment in which students told me that Cambridge Book 14 Test 3 is quite difficult, and there is one more passage from Cambridge Book 16. So, in this video, I am going to cover Cambridge Book 14 Test. Now, what's the most important part? That I am going to do this passage 3 of academic reading test in just 12 minutes. Yes, you heard it right. I'm going to finish this passage in 12 minutes. I know reading passage 3 is the most difficult out of the 3 passages, but it is possible to do this one as well in 12 minutes only. Let's get started without wasting further time. Now, before we begin, you just need to look at the passage. You just need to look at the number of paragraphs it has. Okay, so that's something you need to do prior to starting the passage. Now, we have question number 27 to 40 here. Okay, and the name of the passage is The Power of Play. So simply we can judge that they are going to talk about play. They are going to talk about children. They are going to talk about outdoor play, or maybe they are going to talk about screen time. They can talk about playing. So that we have got it to. Now we'll just have a look at the questions. We have 3 question types here. First one is match each statement with the correct researcher. It is like matchups. It is not headings. So you cannot take it as a question that it is headings. So we are going to do it in the beginning. No, it is a different type of question, match ups. And for this also I received a comment. Ma'am, please do classification question types with us. Now, next we have yes, no, not given. Remember guys, there is difference between yes, no, not given and true, false, not given. True, false, not given is something which agrees with the passage, with the information given in the passage. And yes, no, not given is something wherein you have to see whether the statement agrees with the claims of the writer. What is the writer suggesting there? Now, question number 37 to 40, easiest amongst all, fill in the blanks. Okay, but here as we have 3 different question types and we do not have headings as well as multiple choice questions. So we'll simply start with the first one. Okay, without wasting further time, let's get started. The time right now on my watch is 9:44. Sorry, 9:45 exactly. Okay, so in another 12 minutes, as in 9:57. थोड़ा सा जल्दी से करूंगी, देखना बस मुझे कि मैं कैसे कर रही हूँ. तो मुझे सबसे पहले पैसेज दिख गया है, मैं यहाँ पे मार्किंग करने वाली हूँ 1, 2, because here A, B, C, D is not written. So simply what will I do? I'll mark it. This is also a paragraph, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th. Okay, so you have seen this. Now you have gotten to know what number of paragraphs. Now let's proceed further to the first question. Match each statement with the person. The best method to attempt a question like such is find the name of the researchers in the passage. Elkind, Miller and Alman, Rubin et al., Stuart Brown, Pellegrini, Joan Goodman, and Hirsch Pesek et al. Okay, so let us find the names one by one and we are going to highlight. Let's start from here. We found the first name. We can find the same name again as well. तो simply जहां जहां पे name मिलता है सर्कल करते जाना. It's important because हो सकता है कि जहां first time name मिल रहा है वहां information नहीं है, second time पे होगी. ठीक है. So next name, third name, okay, again Miller and
Alman we found again. Okay. Ruben et al. We found again. No names here. Again, Ruben as in and colleagues, so we can simply circle it here. Pellegrini, John Goodman, Fisher et al. I believe this name was not there. So circling Hirsch, Pesek, and I think we did not find the other one as well. This one. Okay. So these two can be skipped because these were not the names there. Now let's start with the first one. We have found Elkent. Okay. So let us see if there's any information related to the same. So here, today children play 8 hours less each week than their counterpart. So simply 8 hours less each week than their counterpart did 2 decades ago. Okay, so we need to find it here if there's any information related to the same. So total 5 sentences है. जल्दी से पढ़ लो ध्यान से. Play can be divided into number of separate categories. So play divided separate categories. Okay, so they're going to talk about division. Adults' intended goals affect how they play with children. So adults' goals affect how they play children. Okay, combining work with play. Okay, so combining work with play, best way to learn. Certain elements of play are more significant. Certain elements more significant. Activities can be classified on a scale of playfulness. Activities classified playfulness. So we have not found any information related to Elkent. Simply remove it. Now next one, Miller and Alman. So let us see where is Miller and Alman. So we got it here. Next is Miller and Alman. What is he saying? He's clearly saying डेफिनेशंस रेंज मतलब जो डेफिनेशन है प्ले की रेंज करती है डिस्क्रीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्ले सच एज फिजिकल अलग अलग डिस्क्रिप्शन इधर दी हुई है ठीक है फिजिकल हो सकता है कंस्ट्रक्शन हो सकता है लैंग्वेज हो सकता है सिंबॉलिक प्ले हो सकता है two lists of broad criteria based on observations and attitudes that are meant to capture the essence of all play behaviors. So they are simply talking about definitions range from discrete description to various types of play physical, construction, language, symbolic. Play can be of different types. So it can, play can define different things physical play, constructive play, language related play, symbolic play. This is what Miller and Alman is saying. So let us see. Play can be divided into a number of separate categories. So clearly, Miller and Alman, we have found the first answer. Next, cross it. They have not mentioned you can use any name more than once. So we have found the first one. So simply cross, cross. Next, Rubin et al. So let us find where exactly it is. So we found it here. Okay. On observations, and so they are saying play can be defined or described on the basis of broad criteria based on observations and attitudes that are meant to capture the essence of all play behaviors. This is what Rubin et al. Is saying, and Rubin et al. Is here as well. So we are going to read this information as well. Play is defined along a continuum as more or less playful using the following set of behavioral and dispositional criteria. So what is he is clearly talking about telling the play ठीक है he is defining the play on the basis of playfulness okay is it more or less playful so we found one option related to playfulness and that will be related to this activities can be classified so he was defining play on the basis of more playful or less playful okay so we found the answer here देखो हर एक चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से हर एक वर्ड समझने की कोशिश मत करना कॉन्टेक्स्ट बस समझो ओवरऑल क्रक्स समझो कि वो क्या
बताना चाह रहे हैं। क्रक्स समझ आ गया तो क्रक्स के बेसिस पे आंसर इजीली मिल जाएगा। इतना टाइम नहीं होता रीडिंग में कि हम हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े। ओके, सो वी हैव फाउंड द थर्ड वन एज वेल, सो सिंपली कट इट नाउ। स्टुअर्ट ब्राउन एंड देन वी हैव पेलर गिनी। Okay, so now we'll find where is Stuart Brown. So Stuart. Yeah, so they are talking about Stuart Brown here. A majority of contemporary definitions of play focus on several key criteria. The founder of National Institute for Play, Stuart Brown, has described play as anything that spontaneously is done for its own sake. But इससे related कहीं पे कोई बात नहीं हुई थी. उसने बोला कि ये purposeless है, produces pleasure and joy. So basically ऐसा कुछ नहीं वहां पे किसी भी sentence में नहीं है, तो we are going to skip this one. ओके, सो कट। नेक्स्ट इज पेलरग्रिनी। बहुत फास्ट करोगे तभी आंसर, अपने ध्यान से बस पढ़ना है और आंसर फाइंड आउट करना है। रीथिंक मत करो, अगर मिल गया फर्स्ट टाइम आंसर, डू नॉट थिंक अबाउट इट अगेन, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज पेलेग्रिनी। ओके, पेलेग्रिनी, लेट अस फाइंड वेयर इज पेलेग्रिनी। So it is here. Let us read here only. Okay. Here also they are talking about Rubin, and Rubin again talked about playfulness here. So we were clear that it was related to Rubin only. Now, however, other researchers have suggested that process orientation and a lack of obvious functional purpose may be the most important aspects of play. So what is the most important? What are the most important aspects of play? So process orientation and lack of obvious functional purpose, process orientation. So let us see where exactly is it. Combining work with play, here they're clearly talking about this. Adults' intended goals, no. Combining work with play may be the best way for children, no. Certain elements of play are more significant than others. So if there's any answer, it can be this one, 30th. So let us look back again. Suggested that process orientation and lack of obvious may be the most important aspects of play. So he said कि ये सबसे जरूरी aspect है play का. Most important किस चीज का synonym है? More significant का. So that's why the answer clearly here is पेलेग्रिनी। ओके, सो बस ध्यान से उन्होंने जो बोला है वो देखो, उसका क्रक्स देखो और सिनोनिम मैच करो। अगर सिनोनिम्स मिलते हैं, क्रक्स मिलता है, तो बस वही आंसर है। नेक्स्ट, जॉन गुडमैन। वी आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस नाउ, तो यही हम जल्दी से देखते हैं। जॉन गुडमैन, वेयर इज जॉन गुडमैन? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है कि पहले सर्कल कर लो नेम्स। अनलाइक प्ले, वर्क इज टिपिकली नॉट व्यूड एज enjoyable। वो कह रहे हैं कि जैसे प्ले इज enjoyable, वर्क तो जो है उसे क्या करते हैं, नॉट व्यूड एज enjoyable। इट इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, गोल ओरिएंटेड है। इंट्रिंसिक होता है जो खुद ही से अंदर से आपका मन करे करने का, और एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड मतलब इसमें कोई गोल होता है। तो रिसर्चर जॉन गुडमैन ने कहा कि हाइब्रिड फॉर्म्स, जो वर्क एंड प्ले एक साथ हम करते हैं, हाइब्रिड फॉर्म्स, वो डेटर नहीं करते, लर्निंग को स्टॉप नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। ऑप्टिमल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग मतलब ऑप्टिमिस्टिक वे में लो, इससे लर्निंग इंप्रूव होती है। सो मीनिंग मैच करना है, कभी भी एग्जैक्ट सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे, सिंपली मैच द मीनिंग, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो जॉन गुडमैन, what did they say? Combining work with play may be the best way to learn. So this is clearly F. And last one obviously will be G only, but still we are going to read it. Hirsch, Pesek et al. Okay, so where is it? It's here. The adult's goal in play varies as a function, so clearly in their educational goals and the child development. So adult का जो role है वो vary करता है at times educational goals में और at times child के developmental level पे. So this is what they are saying. Adults' intended goals affect how they play with children. This is what it mentioned. So बस हमें आंसर मिल गए। अब इसमें हमें टाइम भी लग गया तो इट्स ओके, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है। अब जल्दी से यस नो नॉट गिवन। चिल्ड्रन नीड टॉयज इन ऑर्डर टू प्ले। चिल्ड्रन टॉयज
टू प्ले, नीड टॉयज टू प्ले। ओके, सो हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट करना। देखो हमें ये थ्रू आउट द पैराग्राफ मिला है, सबसे पहले पढ़ो और यहाँ पे देखो टॉयज कहाँ पे है, टॉयज टू प्ले। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है वर्चुअली एवरी चाइल्ड द वर्ल्ड ओवर प्लेज, द ड्राइव टू प्ले सो इंटेंस दैट चिल्ड्रन विल डू सो। वो कह रहे हैं कि इतना इंटेंस होता है ड्राइव प्ले करने का, दैट चिल्ड्रन विल डू सो अंडर एनी सर्कमस्टेंस, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, अगर उनके पास नहीं भी है टॉयज तब भी वो प्ले करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है क्लियरली कि दे नीड टॉयज, सो द इंफॉर्मेशन इज क्लियरली नो। Okay, it is false. That's why the answer is no. Next, it is a mistake to treat play and learning as separate types of activities. वो कह रहे हैं कि mistake है, क्या mistake है, कि play and learning separate types of activities. Mistake, play and learning separate types of activities. So let us see mistake, play and learning separate activities. Okay, so that's what we are going to find now. देखो जहां पे भी हमारा फर्स्ट आंसर मिलता है ना यस नो नो का, उसके बाद ही आपको मिलेगा नेक्स्ट आंसर भी। तो बस बड़ा ध्यान से इस चीज को करना है, यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर वन बाय वन हेयर। ठीक है, सो हमें यहाँ पे देखना है प्ले एंड लर्निंग की बात कहाँ हुई है। तो अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखें, सो दे आर सिंपली टॉकिंग अबाउट प्ले ओनली। प्ले एंड लर्निंग का हमें देखना है, यहाँ पे बात कर रहे हैं चिल्ड्रन प्ले 8 hours लेस। ठीक है, सो चिल्ड्रन स्पेंड प्लेइंग ओके अंडर प्रेशर ऑफ राइजिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ओके, सो यहाँ लर्निंग की बात हो रही है, प्ले इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय टेस्ट प्रिपरेशन। ओके, ठीक है, सो इधर वो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स who aim to give their preschoolers a leg up, वो कह रहे हैं कि जो कोशिश करते हैं कि प्री स्कूलर्स को एक बूस्ट दे दे, है ना, एक प्लस पॉइंट दे दे ओवर अदर्स, वो क्या करते हैं लेट टू बिलीव, वो ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि फ्लैश कार्ड्स एंड एजुकेशनल टॉयज आर पार्ट टू सक्सेस। आवर सोसाइटी हैज क्रिएटेड अ फॉल्स डाइकोटमी बिटवीन प्ले एंड लर्निंग। सो क्लियरली पता चल गया कि मिस्टेक है, कि एक फॉल्स बिलीफ है, मिस्टेक है, क्योंकि वो कहते हैं उन्हें लगता है फ्लैश कार्ड और एजुकेशनल टॉयज ही पाथ टू सक्सेस है, बट ऐसा नहीं है, इट इज अ मिस्टेक। सो वही चीज उन्होंने यहाँ पे बोली है, सेम इंफॉर्मेशन है, तो आंसर विल क्लियरली बी यस हियर। नेक्स्ट, प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप देयर आर्टिस्टिक टैलेंट्स। प्ले हेल्प्स artistic talent, so we have to find artistic talents here। ठीक है, सेकंड के लास्ट में हमें अपना आंसर मिला था, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट फर्दर। ठीक है, आर्टिस्टिक टैलेंट, सो थ्रू प्ले चिल्ड्रन लर्न टू रेगुलेट देयर बिहेवियर। ठीक है, प्ले से वो ये सीखते हैं, लेटर लर्निंग में साइंस एंड मैथमेटिक्स का सीखते हैं, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन कर पाते हैं सोशल रिलेशनशिप्स में, बिल्ड करते हैं एक रेpertoire ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उन्होंने क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करी है, कहीं पे भी आर्टिस्टिक स्किल्स की बात नहीं करी है, तो आंसर विल बी क्लियरली नॉट गिवन, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कोई बात ही नहीं करी है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी नॉट गिवन। कि प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप, ऐसा कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट, रिसर्चर्स हैव एग्रीड ऑन डेफिनेशन ऑफ प्ले। सो कह रहे रिसर्चर्स ने एग्री करा डेफिनेशंस ऑफ प्ले में। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने ऑलरेडी अपना प्रीवियस आंसर ढूंढा था, जहां पे कोई रिसर्चर बोल रहा था कि इट इज बेस्ड ऑन, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। देखो, डेफिनेशंस वेरी करती हैं, मिलर एंड एल्मन ये बोलता है और रूबिन एट ऑल कुछ और बोलता है, तो सेम डेफिनेशन नहीं थी। यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है फुल कॉन्सेंसस, मतलब कि फुल सपोर्ट, फुल एग्रीमेंट ऑन अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्ले कंटिन्यूज टू एल्यूड, मतलब कि ये जा रहा है, इट इज नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस। ओके, एल्यूड द रिसर्चर्स, कि रिसर्चर्स को इट इज मूविंग अवे, डिस्ट्रैक्टिंग द रिसर्चर्स, दे आर नॉट स्टिकिंग टू वन पॉइंट। सो किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ और लगता है, सो मतलब फॉर सम द डेफिनेशन इज डिफरेंट, फॉर अदर्स इट इज डिफरेंट। सो क्लियरली हैव एग्रीड, नो, उन्होंने एग्री नहीं करा, एल्यूड कर रहे हैं बल्कि, मूविंग अवे। ओके, सो द आंसर इज क्लियरली नो। Work and play differ in terms of whether or not they have a target. So they are clearly saying कि work and play differ करते हैं एक दूसरे से on the basis of target, कि कोई goal है या नहीं है। ठीक है, सो वी फाउंड आवर 35th आंसर हेयर इन द फोर्थ पैराग्राफ। अब यहाँ वर्क एंड प्ले की बात कहाँ हुई है, जहां पे हाइब्रिड की बात हुई थी ना, हाइब्रिड फॉर्म वो कह रहे थे, तो वो यहाँ हुई थी वर्क एंड प्ले, क्योंकि हमने अपने मैचअप्स वाले आंसर्स ढूंढे हुए हैं, सो लोकेशन हमें बिना पढ़े भी याद होगी। सो यहाँ क्लियरली उन्होंने बात करी थी वर्क एंड
प्ले की, ठीक है। सो हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड प्ले आर नॉट डेट्रीमेंट, ठीक है, उन्होंने आगे एक्सप्लेन करा है, अगर आप इसे देखोगे, अनलाइक प्ले वर्क इज टिपिकली नॉट व्यूड एज एंजॉयबल, इट इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। तो वो कह रहे हैं कि जो वर्क है वो गोल ओरिएंटेड है, और प्ले गोल ओरिएंटेड, क्या कह रहे हैं, अनलाइक प्ले, प्ले ऐसा नहीं है, प्ले इज एंजॉयबल वेयर एज वर्क इज गोल ओरिएंटेड। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, टारगेट मीन्स गोल, ठीक है। सो यहाँ लिखा है वर्क एंड प्ले डिफर इन टर्म्स ऑफ वेदर और नॉट दे हैव अ टारगेट। सो यही चीज उन्होंने बोली ना कि वर्क में टारगेट है, प्ले में टारगेट नहीं है, प्ले इज एंजॉयबल, सो डिफर करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन है भी ट्रू। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज यस। नाउ कमिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स सबसे इजी होते हैं करने, जस्ट एट कि आपने सिनोनिम्स पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको इजीली पता चल जाएगा, वन वर्ड ओनली में वी हैव टू फाइंड द आंसर हियर। सो हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गाइडेड प्ले an adult contributes to the environment in which the child is playing। जहां पे adult और child की बात हो रही थी, वहां पे आंसर मिलेगा alternatively an adult can play with a child and develop the play, for instance by dash the child to investigate different aspects of their game। so कह रहे हैं कि वो child को, ठीक है, it for instance by dash the child, by dash means यहाँ पे by के बाद आएगा कोई verb आएगा, कि वो चाइल्ड को कुछ कर रहा है जिससे कि चाइल्ड इन्वेस्टिगेट कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर गेम। तो वो व्हाट इज इट डूइंग, ठीक है, व्हाट इज द एडल्ट डूइंग, एन एडल्ट कैन प्ले विद चाइल्ड। सो सबसे पहले यही ढूंढो कि कहाँ पे एडल्ट की बात हुई है, वही यू विल गेट द आंसर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि सारे के सारे आपके जो ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर है वो सारे आपको एक ही जगह में मिल जाते हैं। सो यहाँ पे गाइडेड प्ले की बात हो रही है, वो उन्होंने बताया था। एडल्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। सो उन्होंने बोला एडल्ट्स कैन सपोर्ट चिल्ड्रंस प्ले बाय ज्वाइनिंग देम इन द फन, ये उन्होंने बताया। रेजिंग थॉटफुल क्वेश्चंस, कमेंटिंग कर सकते हैं चिल्ड्रन की डिस्कवरीज पे, उसमें हेल्प कर सकते हैं, और एनकरेजिंग फर्दर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का सिनोनिम है इन्वेस्टिगेशन, एनकरेज कर रहे हैं इस चीज के लिए। सो क्लियरली द आंसर विल बी एनकरेज। सो वी हैव फाउंड आवर फर्स्ट आंसर सिनोनिम के बेसिस पे। एंड एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट का सिनोनिम है, ओके। सो इन चीजों का बस आपने ध्यान देना है, एनकरेजिंग, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ, एडल्ट्स कैन हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न थ्रू प्ले, ओके, एंड मे मेक द एक्टिविटी रादर स्ट्रक्चर्ड, वो स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। इट शुड स्टिल बी बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स डैश टू प्ले, ओके। सो एडल्ट्स क्या कर सकते हैं, दे कैन, ठीक है, हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न थ्रू प्ले। अब वो ये चीज की बात कर रहे हैं। सो लेट अस फाइंड इट, वी फाउंड द फर्स्ट आंसर हेयर, एनकरेजिंग, इसके बेसिस पे आगे कर सकते हैं। ऑल्दो प्लेफुल लर्निंग कैन बी समवॉट स्ट्रक्चर्ड, इट मस्ट ऑल्सो बी चाइल्ड सेंटर्ड, प्ले शुड स्टेम फ्रॉम चाइल्ड्स ओन डिजायर। सो क्लियरली उन्होंने बोला कि कुछ हद तक स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बट ये चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, कि चाइल्ड का खुद का डिजायर होना चाहिए इसमें। सो चाइल्ड्स डिजायर, ओन हम नहीं लिख सकते यहाँ पे बिकॉज दे क्लियरली मेंशन वन वर्ड ओनली। सो हम मेन वर्ड लिखेंगे जो कि है नाउन। सो यहाँ आना भी नाउन ही था, क्योंकि चाइल्ड समथिंग, चाइल्ड की कोई चीज, तो डिजायर इज द आंसर। प्रोसीडिंग फर्दर, प्ले विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एडल्ट्स, कि जिस प्ले में एडल्ट्स इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, गिव्स चिल्ड्रन, इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, गिव्स चिल्ड्रन रियल डैश, रियल का सिनोनिम देखो, चिल्ड्रन को रियल क्या मिल रहा है, कोई नाउन आएगा यहाँ पे, विद एडल्ट्स, ओके। सो अब पहले रियल डैश हमने देखना है, कहां पे बात हुई है इस चीज की। सो लेट अस फाइंड इट हियर। सो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फ्री प्ले, मतलब चिल्ड्रन का कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, बोथ फ्री एंड गाइडेड प्ले आर एसेंशियल एलिमेंट्स, के गाइडेड मतलब एडल्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्री वो अलग से। तो वो कह रहे हैं कि मोटिवेटेड फ्री प्ले प्रोवाइड्स द चाइल्ड विथ ट्रू ऑटोनोमी। सो ट्रू सिनोनिम है रियल का, सो हेयर वी आर गोइंग टू राइट autonomy. So the answer here is autonomy. Okay, autonomy. With adults, play can be dash at particular goals. With adults, adults के साथ play can be dash at particular goals. Okay, so clearly यहाँ पे देखो, while guided play मतलब कि with adults, adults के साथ ही होगा तभी उसे guided बोलेंगे, is an avenue through which parents and educators can provide
more targeted learning experiences. So with adults क्या है, guided, उन्होंने clearly mention करा, इधर देखो आप ध्यान से, with adults play can be targeted at particular goals. ओके, यही चीज उन्होंने बोली। गाइडेड प्ले में क्या होगा, गाइडेड मीन्स विद समवन, सो while guided play is an avenue through which parents and educators can provide more targeted learning experiences. So they clearly mentioned the same only, इसीलिए हमने यहाँ पे भी वो ही लिख दिया है, targeted at particular. So we found the answer here. So basically इस तरीके से आपने करना है। रीडिंग पैसेज 3 डेफिनेटली ट्रिकी होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, और उस चीज की वजह से यू गाइस आर अनेबल टू डू इट ऑन टाइम, बट हम इसे बहुत ही अच्छे से 12 मिनट्स में कर सकते हैं। आपको किसी को भी एक्सप्लेन तो कुछ करना नहीं है, आपने बस खुद करना है। बट करना कैसे है, अगर हेडिंग्स नहीं है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है तो सिंपली फॉलो द सीक्वेंस। पहले ये कर लो, मैंने आपको बताया है इस वीडियो में कि कैसे आपने पहले मैचअप्स को करना है, उसके बाद यस नो नॉट गिवन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने नोटिस करा हो तो हमें मेनली लास्ट 2 पैराग्राफ्स में ही सारे आंसर मिल गए हैं। सो आप ये देखना, अगर आपको किसी 2 पैराग्राफ्स में आंसर कोई भी नहीं मिले हैं तो एग्जामिनर वुड वांट यू टू गो थ्रू दोस 2 पैराग्राफ्स एज वेल, एंड द रिमेनिंग आंसर्स और रिमेनिंग क्वेश्चंस, the answers to the remaining questions will be find in those two only, जो कि लेफ्ट हैं, जो आपने पढ़े नहीं है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क करो, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप लोग भी इजीली कर पाओगे रीडिंग पैसेज 3 को अंडर 15 मिनट्स में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स। मैं इसी के साथ साथ एक वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ जिसमें मैंने रीडिंग की हेडिंग्स एक्सप्लेन करी एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सो किसी को भी हेडिंग्स एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप जाके चेक करो, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। एंड इफ यू वांट improvement in 1 or 2 modules, you can simply contact us on the numbers given below. Thank you so much. Bye bye.